ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी वो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला जाना कि व्हाट इज द कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग फार्मूला एंड एक से ज्यादा डबल बॉन्ड में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं ये भी जाना। अब आज मैं तुमको थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें कि सिर्फ बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे एंड विच कंपाउंड विल नॉट शो जीआई। तो इसके लिए तो मैंने ये पहले ही लिखे हुए हैं तो तुम इनको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आइए इनको डिस्कस करते हैं। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल इसमें दिखेगा कि जो अभी नहीं क्लियर हुआ है तो वो फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स वेट, नाउ नाउ वी विल हैव टू चेक फर्स्ट विच ऑफ द। तो तुम्हें क्या देखना, फिर से याद करें, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट एंड टू ग्रुप्स ऑन ईच एटम विल नॉट बी द सेम। बस यही चीज तुमको देखनी है। और किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, कोई कंपाउंड है अगर उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल बॉन्ड के अराउंड अलग चेक करेंगे जीआई। अगर वो कंपाउंड में साइक्लिक रिंग है तो साइक्लिक रिंग के अलग चेक करेंगे। और डबल बॉन्ड और किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड भी है और साइक्लिक रिंग भी है तो डबल बॉन्ड के अराउंड अलग चेक करेंगे जीआई, साइक्लिक रिंग के अराउंड अलग चेक करेंगे जीआई, और तब अपना आंसर देंगे कि वो कंपाउंड ओवरऑल जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। कई स्टूडेंट क्या करते, केवल उन्होंने डबल बॉन्ड के अराउंड देख लिया। अब डबल बॉन्ड के अराउंड तो वो नहीं शो कर रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो साइक्लिक रिंग के अराउंड शो कर सकता है। तो फिर हमें दोनों के अराउंड चेक करना होता है। इफ ए कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रेस्पेक्ट टू एनी like double bond or cyclic ring, then that compound will have to show geometrical isomerism. So come to the point here. Now question number 1, here only one double bond is present, this double bond is present, this is the geometrical unit. This compound will show geometrical isomers because two groups on one atom will not be the same. This compound will show geometrical isomers. Here one geometrical unit will also present. This compound will also show geometrical isomerism. Here this is the geometrical unit and two atoms on each atom, two groups on each atom must not be same. So this compound is following the condition of geometrical isomers. So here this will also show GI and this will not show GI. Here restricted rotation is present. Restricted rotation, RR, restricted rotation is present. But two groups on one atom, this will be the same. So this compound will not show geometrical isomers. This compound, triple bond is planar. Linear molecule never show GI. Linear molecule will never show GI. Now come to the question number 6. This is the geometrical unit. And here restricted rotation is present and here hydrogen and here hydrogen. So this and this group are not the same and this group are also not the same. So this compound will show geometrical isomerism. Now here this is around this double bond restricted rotation is present, but you are seeing that here two hydrogens are present. So this compound will not show geometrical isomers because two groups on each atom here is the same. Now come to the question number 8. If double bond is present in the cyclic ring, then minimum number of carbon atom for to show GI, that will be the 8. And here 6 carbon atom is present. No doubt restricted rotation is present here. But this compound will not show geometrical isomers, or you can say this compound will exist only as the cis form, no trans form will here exist. So this compound will not show geometrical isomers. Here restricted rotation is present, but minimum number of carbon atom for to show geometrical isomers, that is what? This is here 8. So this compound will not show geometrical isomers. Now come to the question number 9. Here double bond is also present. So no doubt restricted rotation is present here. But and here also hydrogen is also present here. This compound is also the cis around the double bond.
but here transform will not exist. Why transform will not exist? Because in cyclic ring around double bond, in cyclic ring, if you want to see geometrical isomers around double bond, that minimum number of carbon atom required, that will be the 8, and here only 6 carbon atoms are present, so here only cis form exists, not transform. Overall Gi with respect to double bond will not show, but simultaneously you are seeing one more geometrical unit or is also present here. One more geometrical unit is also present here, that is the cyclic ring. Listen here very carefully, and this is the hydrogen and this is the hydrogen. Due to presence of cyclic ring, restricted rotation is present, and simultaneously if both hydrogen are on the above side, then it is known as cis, and both hydrogen is when the opposite side, it is known as the trans. So with respect to cyclic ring, this will show Gi. So this compound overall will show Gi, but with respect to double bond, this will not show Gi, but with respect to cyclic ring, this will show Gi. So overall compound, you will say that this will show Gi. आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, यहां पर डबल बॉन्ड के अराउंड Gi शो नहीं करेगा, लेकिन साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग के अराउंड Gi शो करेगा. सो ओवरऑल कंपाउंड माना जाएगा कि Gi शो करेगा, बस बट किसके अराउंड? साइक्लिक रिंग के अराउंड. 9 नंबर को मैं तुम्हें बता दूंगा और थोड़ा डिटेल ओपन कर दूंगा. 10 नंबर, listen, double bond, with respect to double bond, this will not show Gi because minimum number of required carbon atom is 8, but with respect to but with respect to cyclic ring, this will show Gi. So with respect to double bond, this will not show Gi, and with respect to cyclic ring, this will show Gi. Okay, overall compound will show Gi. Now in question number 11, here with respect to double bond, this will not show Gi. With respect to double bond, this will not show Gi because minimum number of required carbon atom is, that is how much? 8. Here is the only 4 carbon atom, so this will not show Gi. But and simultaneously साइक्लिक रिंग के अराउंड भी ये Gi शो नहीं करेगा. कई लोग सोचते हैं साइक्लिक रिंग के अराउंड जल्दी से देखते हैं, कैसे कि सर दोनों मिथाइल एबव कर दिए तो सेस और एक एबव एक बिलो कर दिए तो ट्रांस, लेकिन ऐसा नहीं है. ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन है यहां पर, लेकिन यहां कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये प्लेनर है. This hybridized is sp2 and this carbon is the planar. और प्लेनर कार्बन है तो तुम क्या ऊपर करोगे और क्या बिलो साइड में करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम. ओके, सो जब ये तुम्हारा प्लेनर है, इधर साइड तो ठीक है, ये तुम यहां CH3 और हाइड्रोजन एबव या बिलो तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन जब इस केस में जाओगे तो वहां पर तुम्हारे पास एक और हाइड्रोजन नहीं है. सो यू विल नॉट शो Gi विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिक रिंग. सो पहली वाली बात हम बता रहे, विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड नॉट शो Gi, विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिक रिंग नॉट शो Gi, ओवरऑल दिस कंपाउंड नॉट शो Gi. Listen students, now question number 12, with respect to double bond, this will not show Gi because minimum number of required carbon atom is 8. But with respect to cyclic ring, here you see this, with respect to cyclic ring, here one hydrogen is present, here one hydrogen is present, so with respect to cyclic ring, this will show Gi. अगर तुम साइक्लिक रिंग के अराउंड Gi देख रहे हो तो याद रखना कंपाउंड में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए. देखिए sp3, लेकिन यहां क्या है? sp2 और ये sp3, सो ये कंपाउंड Gi शो नहीं करेगा. फिर से सुन ले, अगर साइक्लिक रिंग के अराउंड Gi तुम देख रहे हो, साइक्लिक रिंग के अराउंड, तो
जिस कार्बन पर भी तुम चेक कर रहे हो जीआई, उसको क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड कार्बन उसको होना चाहिए। लेकिन अगर जो है तुम अगर अगर जो है तुमने देखा है एक sp3 है और एक sp2 है, तब वो कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा। हाँ, डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, देन दैट कार्बन एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिड। ये ध्यान रखें। ओवरऑल दिस कंपाउंड विल शो GI. Now come to the question number 13. Here, this is the hydrogen and this is the hydrogen and this is the cyclic ring. So this compound will show GI with respect to cyclic ring. Here, double bond is present and double bond is present. So here, this double bond is present. So minimum number of carbon atom required, that will be the 8. So this compound will show GI. GI with respect to double bond. With respect to double bond. तो यहां पर with respect to double bond ये GI शो नहीं करेगा, यहां पर रिंग के अराउंड शो करेगा, ये रिंग के अराउंड शो करेगा, ये डबल बॉन्ड के अराउंड शो करेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. यहां here more than one double bond is present, so you will have to check which is geometric unit, which is geometrical unit. So you will see that this carbon nitrogen, this is a correct unit because here lone pair will also be present. So this is actually the geometrical unit, and GI will show around this double bond, but double bond is here, but here both hydrogen are present. So this compound will not show geometrical isomers with respect to this double bond. So this is not geometrical unit and this is the geometrical unit. Overall, this compound will show geometrical isomers. This is a very good example. Okay. Now students, come to the question number 16. No problem, because here one lone pair is present and here restricted rotation is present, and this compound will show GI. This compound will also show GI. Now come to the question number 17. With respect to double bond, minimum number of required carbon atom in cyclic ring, that will be the 8. So this compound will not show GI, not show GI, not show GI. And in cyclic ring, carbon atom must be sp3 hybrid, and here these are the sp2. So this double bond also not show GI. Overall, this compound will not show GI. भाई जब साइक्लिक रिंग के अराउंड देखोगे तो तुम्हें कैसा कार्बन चाहिए? sp3 हाइब्रिड कार्बन चाहिए। तो यहाँ sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं है, sp2 है, तो छोड़ देते हैं उसको। फिर उसके बाद जब तुम डबल बॉन्ड के अराउंड देखोगे साइक्लिक रिंग में, तो कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए तुम्हारे पास? 8। तो वो भी यहाँ पर नहीं है। सो दिस कंपाउंड विल ऑल्सो नॉट शो GI. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. This is the geometrical unit or not? Not geometrical unit, because this and this group are the same group. Okay. And this are the geometrical unit or not? Yes, because here is the hydrogen, it is the hydrogen. So on this carbon, this group and this group are different, and on this carbon, this group and this group are different. But simultaneously, this is the geometrical unit or not? No, because here two hydrogens are present. No doubt, overall this compound will show GI, but this compound will show GI with respect to only middle of the double bond. Okay. Overall, this compound will show GI, no problem, but this compound will show GI with respect to middle double bond, not with respect to first and third. With respect to first and third double bond, this compound will not show GI. Okay. Now question number 19. Double bond not show GI because minimum number of carbon atom required, that will be the 8. Here this double bond not show GI because minimum number of carbon atom required, that will be the 8. And simultaneously, if you want to see geometrical isomers with respect to cyclic ring, then again will not show, because this is the sp3 hybrid carbon, no problem, but here sp2 hybrid carbon atom is present. जब फिर से सुनिए, जब साइक्लिक रिंग के अराउंड तुम्हें देखना है
तो कार्बन एटम कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिड नहीं है तो वो कंपाउंड GI नहीं करेगा। लेकिन जब ओपन चेन है तो कार्बन कैसा होना चाहिए? देन दैट कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिड। ओके, now students come at the last question, and this double bond is the geometrical unit here because restricted rotation is present here, and this carbon, this group and this group are the different group, and this carbon, this group and this group are the different. No two group present on each carbon atom must be same. No two group present on each carbon atom is the same. So this compound will also show geometrical isomers. So these 20 examples you can see very clearly and see that these compounds will show geometrical isomers or not. Okay students, now after this कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, और अब हमें इसके बाद बात करनी है ऐसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताएंगे जिसमें कि, कैसे कंपाउंड में बताएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, लेकिन उधर हमने बात की थी कंजुगेटेड की, और अब बात करेंगे क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है लेकिन वो क्यूमुलेटेड पोजीशन मतलब कंटिन्यूइंग, तो वो भी एक बिल्कुल अलग केस है। और इस केस को जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, इस केस को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए क्योंकि जब आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में बताऊंगा उसमें भी ऐसे ही केस आएंगे, ठीक है। और जो केस अब तो मैं बताने जा रहा हूँ वो आईआईटी वाले स्टूडेंट्स खासकर ज्यादा ध्यान दें, है ना। और नीट के लिए भी ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के लिए भी है, लेकिन आईआईटी वाले थोड़े ज्यादा ध्यान दें। ओके, चलिए, हालांकि तो पहले मैं थोड़ा सा तुमको डिटेल बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कैसे करते हैं। तो आइए उस तरीके कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। ओके ओके Okay students, so now come to the geometrical isomers in such type of the compound when double bond is in cumulated position. Okay, तो फिर से वही बात, एग्जाम्पल कौन सा था? एग्जाम्पल यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, मुझे लगता है 20 एग्जाम्पल था, और 20 के बाद, हाँ 20 ही 18 से स्टार्ट किया था, 19 20, और 20 के बाद फिर हमने तुम्हें क्या बताया था बीच में? वही फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताया था, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने के बाद ये क्वेश्चन करा दिया था। तो अभी जो है 21 पर आते हैं। ओके, तो चलिए 21, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI 21 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कंपाउंड्स having cumulated double bond, having cumulated double bond, having cumulated double bond। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कंपाउंड्स हैविंग क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, तो क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड का केस, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड जानते हो जब दो डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, उस समय होता है। तो इस टाइप के कंपाउंड में हमें थोड़ा पहले डिटेल देखना होगा, और
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखने का नजरिया चेंज करना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सिंपल बेसिक एग्जाम्पल याद करते चले आए हैं, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है उनको देखा है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना है। तो मैं एक एग्जाम्पल को डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें शॉर्ट में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21, और तुमसे ये कहा गया यहाँ पर हाइड्रोजन और ये रहा CH3 और ये रहा डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड और ये रहा हाइड्रोजन और CH3। और तुमसे ये कहा गया कि यहाँ पर दिस कंपाउंड विल शो GI और नॉट। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए पहले हम जो कुछ भी देखते थे वो अब अलग बात है। अभी हमें क्या देखना है कि मॉलिक्यूल जो है कैसा होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर। अगर प्लेनर नहीं होगा मॉलिक्यूल तो समझ लेना कि वो GI भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि जब उसमें सिस और ट्रांस बनेंगे, जब तक उसमें डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तब तक वो कैसे GI शो कर सकता है। तो अब हमें पहले क्या देखना है कि मॉलिक्यूल में एक तो जो है तुम्हारे में मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, एक तो मॉलिक्यूल में प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनर होने के साथ साथ जो सिस और ट्रांस बता रहे, मतलब पहली बात प्लेनर, तो हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अब हमें ये डाउट है कि ये पता नहीं प्लेनर है कि नहीं है, तो मैं इसको तुम्हें एक शॉर्टकट बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये कार्बन जो है तुम्हारा कैसा है, sp2 हाइब्रिड। ये वाली जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ये चाहे तो नीट वाले स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं, हालांकि IIT वाले भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं IIT वालों को कहूंगा कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। खासकर नीट वाले तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, नीट वाले तो कर ही सकते हैं स्किप, है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट से चले जाएं कि भाई हमें ये पता चल जाए कि GI शो करेगा या फिर नहीं, बस ये चीज जानना है। ओके, हाँ, तो आइए अब मैं इस कंपाउंड को ये चेक करने जा रहा हूं कि ये प्लेनर है कि नहीं। और तुम जानते हो कार्बन है sp2 हाइब्रिड, और कार्बन अगर sp2 हाइब्रिड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 और 2p2, और ये रहा 2s2, मैं हाइब्रिडाइजेशन पर चल रहा हूं, और ये है 2p2, दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट, एंड नाउ एक्साइटेड स्टेट, because of the formation of 4 bond, you will have to create the excited state in this way. And now if you want to take hybridization sp2, so this is actually s, this is sorry, this is actually px, this is py, and this is pz, and you want to hybridize sp2. This is the nucleus, 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 and nucleus, and here electron, 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 and sp2. So this is the hybrid orbital. Electron will never hybridize, electron will never hybridize, orbital will hybridize, and hybrid orbital will form sigma bond, and unhybrid orbital will form pi bond. Okay, so here three type of the hybrid orbital are present, which is at 120 degree. So listen this, and this is hybrid, this is hydrogen, this is hybrid, this is methyl. I am not opening this, so this is actually methyl. मेरा टारगेट यहाँ है प्लेनरिटी बताने का, एंड दिस इज कार्बन, ओके, एंड दिस इज अगेन द कार्बन, एंड हियर pz, one pz orbital is remaining, so this is pz and this is pz, and this is the pi bond. And simultaneously एक बात तुम्हें और बता दें, दो लगातार, दो कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड, जैसे ये दो कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड कभी भी एक प्लेन में नहीं बन सकते। टू कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वन प्लेन। तो मैं यहां पर देखता हूं, जैसे ये कार्बन है, अब इसके बाद अब इसको ये तुमने बनाया, अब इसके बाद दूसरा जो पाई बॉन्ड है, जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो देखिए ऐसे बनाया और ऐसे, और ये रहा और ये रहा। तो जब तुम इसका पाई बॉन्ड पीजेड पीजेड से, मान लो ये py है और ये pz है,
तो पहली बात तो ये पी वाई है, तो ये पी जेड 100% होगा. दिस कैन नॉट बी पी वाई बिकॉज वन कार्बन एटम हैज नॉट टू पी वाई बॉन्ड. वन पी एक्स, वन पी वाई, वन पी जेड. सो ये रहा. तो इसका जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा वो कैसा होगा, ऐसे इस प्लेन में होगा. एंड दिस इज द हाइड्रोजन, हियर हियर आल्सो हाइड्रोजन, एंड दिस इज द CH3, दिस CH3. So this hydrogen and methyl, this hydrogen and methyl is not in the same plane as these hydrogen and methyl. और जब ये हाइड्रोजन और मिथाइल उस प्लेन में नहीं है तो फिर समझ लीजिएगा कि तुम सोच के देखिए, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस मान लेते हैं L1 और इस हाइड्रोजन से इस की डिस्टेंस मान लेते हैं L2. तुम हमें ये बता दो कि L1 जो है L2 के बराबर होगा या नहीं होगा. अगर L1 L2 अलग अलग है तब तो ये कंपाउंड GI शो करेगा, लेकिन अगर वो अलग अलग नहीं है तो दिस कंपाउंड विल नॉट शो GI, बिकॉज अगर तुम इस हाइड्रोजन और मिथाइल को चेंज करोगे तो डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, और जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तब तक कभी भी सिस और ट्रांस नहीं बन सकते. फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं, मैं इसको तुम्हें और एक अच्छे तरीके से बताता हूं, जैसे आप देखिए, समझिएगा जरा. ये रहा तुम्हारा एक ऐसे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए. ये देखिए, है ना, क्लियर है ना यहां पर, या उसको छोड़िए, यहां पर आइए. ये रहा एक ऐसे, वंस ए मिनट, ऐसा, ये देखिए. और दूसरा कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा. फिर इसके बाद ये एक पाई बॉन्ड ऐसा ऐसा बना है, तो दूसरा पाई बॉन्ड कैसा होगा, ऐसा ऐसा बनेगा. और जब दूसरा पाई बॉन्ड ऐसा होगा तो इसका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जाएगा और इसका हाइड्रोजन कहां जाएगा, अबव द प्लेन. क्यों, क्योंकि अगर ये वाला कार्बन भी चाहता है कि हम इसके साथ प्लेन में हो जाए, तो ये वाला पाई बॉन्ड जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये वाला पाई बॉन्ड भी होना चाहिए. और ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के साथ कभी भी प्लेन में नहीं हो सकता है. कंटिन्यूअस है इसलिए क्योंकि अगर ये दोनों पाई बॉन्ड अगर एक दूसरे के साथ प्लेन में होंगे तो इस बीच वाले कार्बन के पास दो पी वाई या दो पी जेड होने चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकते. तो तुम ये भी याद कर सकते हो कि दो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कभी भी एक प्लेन में नहीं बन सकते हैं, या कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड कभी भी एक प्लेन में नहीं बन सकते हैं. आइए मैं इस बात को लिख देता हूं शॉर्ट में, एक नोट लिख देता हूं. टू कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, टू कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेनर. टू कंटिन्यूअस यानी पाई, पाई में लिख देता हूं, टू कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेनर. देखना, अब जरा विजुलाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरे पास इतनी चीजें मॉडल नहीं है, मैं ऐसे ही समझा सकता हूं इसको, तो आप समझ जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. जैसे ये कार्बन, अब यहां से ये कार्बन, अब ये कार्बन के बाद फिर एक और कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन आ गया, समझिए इस बात को, है ना, यहाँ एक और कार्बन आ गया. एक और कार्बन के बाद ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इधर चला गया और ये मिथाइल. अब तुम ये बताओ कि यहाँ से ये डिस्टेंस, समझना 3D में, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, बताओ ये सेम होगी कि अलग अलग होगी. तो तुम समझ गए कि ये डिस्टेंस कैसी है, तुम्हारी सेम है. इसलिए इस हाइड्रोजन और मिथाइल को अगर तुम चेंज करोगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए यहां पर कोई भी सिस और ट्रांस अलग अलग नहीं होंगे. ओके, तो जैसे मैं यहां कहना चाहता था कि यहां पर जो है क्या होगा, L1 इज इक्वल टू L2. बात को समझिए. और जब L1 इज इक्वल टू L2 है, इसलिए हाइड्रोजन एंड मिथाइल, है ना, by changing these two groups, by changing
these टू ग्रुप्स मतलब जब तुम इन दोनों ग्रुप को चेंज करोगे तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो यहां पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा, इसलिए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। तो मैं तुम्हें अभी एक और एग्जांपल बता देता हूं, नहीं तो सीधा शॉर्टकट पे आते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट, है ना। तो शॉर्टकट चलिए, मैं पहले इसको हटा देता हूं, एक और एग्जाम्पल बनाऊंगा पहले यहां पर, फिर उसके बाद करते हैं डिस्कस। तो रुकिए जरा, है ना। अब यहां पर एक और कंपाउंड बनाएंगे, और इसी को जानते हो क्या कहते हैं? एलीन्स। जनरल नाम क्या है? एलीन्स। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, इसी को कहते हैं एलीन्स। तो ये अब मैं इसमें 22 नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूं, और 22 नंबर में देखना क्या है एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सी और मिथाइल, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और हमने कर दिया हाइड्रोजन और मिथाइल। इनके लिखने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं तुम्हें सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं इसका कि कैसे तुम्हें अप्लाई करना है। दिस इज sp2 हाइब्रिड, इट इज sp, इट इज sp एंड इट इज sp2। तो अब जब मैं अब जो है जानते हो, अब हम जो ऑर्बिटल डायग्राम, ये क्या था? ऑर्बिटल डायग्राम था। तो अब जो हम ऑर्बिटल डायग्राम है वो भी मन में शॉर्ट में बनाएंगे, ये सब नहीं, इतना नहीं बनाएंगे। बस यहां हमने तुम्हें ये बताने की कोशिश की थी कि सिंस ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ प्लेन में नहीं है, मैं ये वाली बात यहां लिख देता हूं, ये देखिए और ये देखिए, है ना, नॉट प्लेनर पाई बॉन्ड, नॉट प्लेनर पाई बॉन्ड। और जब प्लेनर पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर ये बॉन्ड भी इनके साथ कभी भी प्लेन में नहीं हो सकते हैं। और जब प्लेन में नहीं होंगे तो फिर L1 और L2 डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। एंड सेम अगर रहेगी तो नॉट सो GI, तो ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। आइए इसकी बात करते हैं। तो कोई कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं, इस बारे में बताने के लिए हम तुम्हें शॉर्टकट पे लेके चलते हैं। अब हमें ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाना है, तो क्या करना है? आइए, ये वाला पाई बॉन्ड अपने मन से मान लो ऐसे, ये पाई बॉन्ड py में है, ऐसा ये पाई बॉन्ड अपने मन से मान लीजिए py में है। तो 100% दूसरा वाला जो पाई बॉन्ड है वो कैसा होगा? pz। यानी ये py में है, तो लगातार कंटिन्यूअस टू पाई बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेनर, कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन सेम प्लेन। तो जब ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के साथ प्लेन में है, सॉरी नॉन प्लेनर है, तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों है? नॉन प्लेनर इसलिए है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल क्योंकि ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे, ये अलग प्लेन में होंगे और ये अलग प्लेन में होंगे। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं इस केस में तो क्या देखेंगे? ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो बना है वो py, फिर इसके बाद pz, और वापस ये फिर से py में आ गया है। इसका मतलब 100% दीज टू हाइड्रोजन एंड मिथाइल, और वो हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों कैसे हो गए? सेम प्लेन में। ओके, तो मैं इस बात को लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये देखिए, है ना, और ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये रहे, है ना, सेम प्लेन। ये किस प्लेन में है? सेम प्लेन। क्यों? क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड कैसा था? अब देखिए डिटेल में, py, ये है तुम्हारा pz, और ये है तुम्हारा py। तो जब पहले वाला पाई बॉन्ड और थर्ड वाले पाई बॉन्ड आपस में प्लेनर है, तो इसका मतलब है कि ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड भी क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। और जब सेम प्लेन में होंगे तो अगर हम इसकी डिस्टेंस L1 मानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कहा बताऊं यार, जगह ही नहीं रही है। और दूसरा जो है मान लेते हैं ये रहा, कैसे समझ लीजिएगा तुम, ठीक है, थोड़ा जगह कम है, ऐसे मैंने ओवरलैप कर दिया है, दिस इज L2 और दिस।
तो L1 और L2 यहां पर इक्वल होंगे कि नहीं, ये समझ ले। तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, इसका मतलब है, साथ ही साथ में तुम ये भी कह सकते हो कि L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 जो है बड़ी है, L1 छोटी है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये, अब तुम हाइड्रोजन और मिथाइल अगर चेंज करोगे तो वंस ए टाइम हाइड्रोजन विल बी नियरर टू दिस हाइड्रोजन एंड ए सेकंड टाइम हाइड्रोजन विल बी फार टू दिस हाइड्रोजन. So here two types of the isomers will arise, that will be the cis and trans. So here two types of the isomers will, you can create cis and trans. How you will create the cis and trans? तो एक तुमने ये बना दिया cis और दूसरा कंपाउंड मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूं. ये देखिए यहां पे ट्रांस बना रहा हूं, हालांकि ट्रांस बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और यहां पर हो गया CH3 और ये हो गया H. तो ये हो गया तुम्हारा सिस और ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रांस. समझिए बात को. तो जब पहले वाला क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए, दोनों मैंने साथ ही साथ तुमको बताए हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस समझिए कि पहले वाले में अगर ये दो पाई बॉन्ड इस तरीके से है, ये प्लेन में नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर. और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो सीधा प्लान रिजेक्ट कर दो एकदम. अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो दैट कंपाउंड विल नॉट शो जीआई. मैं आई एम राइटिंग हियर नॉट शो GI. Okay. And in this case, molecule is planar because Py, Pz, again Py. So this molecule is planar. And when the molecule will planar, then here cis and trans form will arise and this compound will show geometrical isomers. I am writing here Py, and here Pz and Pz. So यहां पर एक शॉर्टकट तुम्हें मिल गया है. हालांकि मैं एक एग्जाम्पल अभी और डिस्कस करता तो तुम हमारे से पहले ही शॉर्टकट बना लेते, लेकिन अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 2, 4, 6, 8, तो समझ लो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर है. और नॉन प्लेनर कभी भी जीआई शो नहीं करेगा. अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 1, 3, 5, 7, तो समझ लो मॉलिक्यूल प्लेनर है और वो कंपाउंड जीआई शो करेगा. ओके. तो क्या मैं यहां लिख दूं इतनी सी बात, ये लो. तो मैं यहां लिख देता हूं तुमको इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जगह थोड़ी सी कम है, छोटा लिख रहा हूं, बोल रहा हूं साथ में, आप नोट कर लें. इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लेनर मॉलिक्यूल, ओके. ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, अगर मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो जीआई शो होगी. और अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो कभी सोचना भी नहीं कि वो जीआई शो कर सकता है ना. तो अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो वो जीआई शो नहीं करेगा. ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है पता है, शॉर्टकट. तो ये मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्टकट. समझ लो फिर से, अगर मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर. अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो कैसा है मॉलिक्यूल, प्लेनर. तो ये तो बात तुम यहां समझ गए, काउंट किया 1, 2, 2 डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, 3 डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल प्लेनर. अब प्लेनर अगर है तो मॉलिक्यूल क्या करेगा,
जीआई शो करेगा। लेकिन फिर एक बात कि एक एलिमेंट पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ये नहीं कि ब्लाइंडली जीआई शो करेगा, प्लेनर मॉलिक्यूल है लेकिन एक कार्बन एटम पर दोनों ग्रुप सेम भी नहीं होने चाहिए। हाँ, नॉन प्लेनर अगर मॉलिक्यूल है तो कुछ भी केस बना रहे, whatever be the possibilities, that compound will never show geometrical isomers। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो वो जीआई शो नहीं करेगा, अगर प्लेनर है तो वो जीआई शो करने की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन तुम्हें फिर देखना होगा कि एक एलिमेंट पर दोनों ग्रुप सेम है या फिर नहीं है। ओके, तो मैं इसके और भी एग्जाम्पल तुम्हें नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करूंगा और फिर तुमको बताऊंगा इसमें कुछ और एलिन्स के, स्पाइरेन के एग्जाम्पल, और इनमें एक दो तीन एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। तो बस ओवरऑल ध्यान रखिएगा, ये वाला शॉर्टकट याद करिएगा। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल प्लेनर, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ओहो सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, करेक्ट दिस, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल प्लेनर। ओके, ये देखिए आपके सामने है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल प्लेनर, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 टू इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, तो ये हो गया नॉन प्लेनर। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बाद, और फिर जो भी होगा, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और बचा हुआ है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ और फिर अगले एग्जाम्पल स्पाइरेन की भी बात करता हूँ। ओके।